گزشتہ روز خیبر پختونخوا کے وزیر خزانہ مزمل اسلم صاحب جو کہ کراچی سے امپورٹ کیے گئے ہیں، اس نے پنجاب اور سندھ پہ تنقید کی کہ وہاں پہ گزشتہ کتنے سالوں میں کتنے کارخانے بند ہوئے. تو ٹوٹل اس نے بتایا کہ تقریباً پنجاب اور سندھ دونوں ملا کے کچھ 100 کے قریب جو ہے مختلف انڈسٹریل یونٹس بند ہوئے ہیں. میں نے اس سے سوال کیا کہ مزمل صاحب آپ ذرا یہ بھی بتائیں کہ خیبر پختونخوا میں کتنے کارخانے بند ہیں اور کتنے انڈسٹریل یونٹس کا خیبر پختونخوا جو ہے وہ قبرستان بن چکا ہے. تو ریسنٹلی جو ہوا ہے خیبر پختونخوا میں ٹوٹل جو انڈسٹریل یونٹس ہے جس میں کولڈ سٹوریجز، آئس فیکٹریز، چھوٹے بڑے سب ملا کے جو ہے تقریباً 2500 کے قریب لگ بھگ ہے. اس میں جو بند ہوئے ہیں مختلف اور کن وجوہات بھی بند ہوئے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں گا. 700 یونٹس جو ہے نا اس وقت مکمل طور پر بند ہے، باقی جو ہے کوئی 60%، کوئی 40%، کوئی 30% کیپیسٹی پہ چل رہا ہے. یہ ایسا ہے کیوں؟ پہلے اس کے بعد ہم مرکزی اور صوبائی حکومت کی پالیسیز پہ بحث کریں گے، لیکن پہلے وسائل کی بات کرتے ہیں کہ اس صوبے کو اللہ تعالیٰ نے دیا کیا دیا ہے اور کس طرح مرکز اور مرکزی حکومت کی پالیسیز اور صوبائی حکومت، صوبائی سیاسی قیادت کی نالائکیاں جو ہے کس طرح اس صوبے کو ایک گریو یارڈ یعنی قبرستان میں تبدیل کر رہے ہیں. بجلی پہ بات کرتے ہیں کیونکہ کسی بھی انڈسٹری کے لیے، کسی بھی ٹریڈ کے لیے سب سے اہم چیز جو ہوتی ہے وہ بجلی ہوتی ہے. خیبر پختونخوا کی بجلی کی پیداوار کو اگر ہم دیکھیں، ہائیڈل جو سب سے ارزان ترین بجلی ہے، 1 روپے یا 2 روپے یونٹ کاسٹ اس کی لگتی ہے جب آپ کو اٹھا کے کارخانے تک لے آتے ہیں. گرمیوں میں خیبر پختونخوا کی پیداوار جو ہے بجلی کی وہ 6000 میگا واٹ ہے اور پورے ملک کی جو ہائیڈل پیداوار اگر ہم لے لیں تو وہ 11000 ہے، یعنی 50% سے زیادہ جو بجلی گرمیوں میں جو پیدا ہوتی ہے وہ خیبر پختونخوا پیدا کرتی ہے. اسی طرح سردیوں میں یہ پیداوار کم ہو کے تقریباً 1400 میگا واٹ کے لگ بھگ ہو جاتی ہے، جو مرکزی سطح پہ یہ 3000 رہ جاتی ہے، پھر بھی 50% سے زیادہ ہے. ابھی کنزمپشن ضرورت کتنی ہے خیبر پختونخوا کی؟ گرمیوں میں خیبر پختونخوا کی ضرورت ہوتی ہے 3000 میگا واٹ، یعنی اپنی پیدا کردہ سے جو ہے 50% اس کا جو ہے نا وہ اس کی ضرورت ہے، اور سردیوں میں بھی وہی 1300 کے لگ بھگ جو اس کی ضرورت ہوتی ہے. مرکز نے کیا کیا ہے کہ فائدہ جو ہے یہ پہلے جب 1 یونٹ تھا تو خیبر پختونخوا جو تھا وہ بجلی کی ریٹ کے جو ہے تعین کرتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ خیبر پختونخوا میں بے تحاشا انڈسٹریلائزیشن ہوئی تھی. نوشہرہ، کوہاٹ، ڈیرہ اسماعیل خان، مردان، سوات وغیرہ ہر جگہ پہ انڈسٹریلائزیشن ہوئی تھی. لیکن جب 1 یونٹ بنا تو یہ اختیار مرکزی پاکستان کے پاس آ گیا، اور جب یونٹ دوبارہ توڑا تو ایک ہی چیز جو تھی وہ مرکز نے اپنے پاس رکھی اور وہ بجلی کی ریٹ کا تعین تھا. ابھی اس لیے کہ یہ نہ ہو کہ خیبر پختونخوا میں انڈسٹریز کو کوئی فائدہ پہنچے تو اس کو کراچی، لاہور اور دیگر علاقوں کے ساتھ اس کو ایکوالائز کیا. ابھی دیکھیں کس طرح خیبر پختونخوا کے ان کو جو ہوتا ہے ایج ہوتا ہے، کس طرح اس کو ڈائلیوٹ کرتے ہیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ کراچی کی انڈسٹری لاہور، فیصل آباد اس کے ساتھ یا سیالکوٹ اس کے ساتھ یہ مقابلے میں نہ آئے. تو بجلی کی ریٹ سب کے لیے برابر کر دیں گے. ایک ہی پاکستان ہے جی، ٹھیک ہے جی، ایک ہی پاکستان ہے. گزشتہ حکومت نے اس طرح کیا کہ ایک ویلنگ پالیسی لے آئے کہ خیبر پختونخوا کی جو اپنی صوبائی بجلی ہے اس کو انڈسٹری تک لے جانے کے لیے ایک وابڈا کے ساتھ ایک ایگریمنٹ سائن ہوا کہ 1 یونٹ وہ ویلنگ چارج کریں گے، خیبر پختونخوا بجلی دے گی وہ اور انڈسٹریل یونٹ تک پہنچے. اس میں یہ پیہور کینال کی جو ہوئی تھی ویلنگ پہ وہ کچھ گدون میں اور کچھ پشاور میں ٹرانسفر ہوئی تھی، 1 روپے پر یونٹ چارج. ابھی جب مرکز کو پتہ چلا کہ یہ تو دوبارہ کراچی والوں اور لاہور والوں یا پنجاب اور سندھ کو نقصان ہو رہا ہے تو اس کو اب 12 سے لے کر 16 روپے پی یونٹ کر رہے ہیں. مطلب یہ کہ 1 روپے جس پہ اس کا کوئی کاسٹ نہیں آتا ہے اس کو 12 یا 16 روپے کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. دوسری جو زیادتی کر رہے ہیں، انٹرسٹنگلی ایسا لگ رہا ہے کہ خیبر پختونخوا اس ملک کا حصہ ہی نہیں ہے، بس لاہور اور کراچی ہے، پنجاب اور سندھ ہے. خیبر پختونخوا میں سولرائزیشن ہوئی، مختلف انڈسٹریز کے جو مالکان یا لوگوں نے تقریباً 1200 میگا واٹ
बिजली सोलर से पैदा होती है। अभी जब वाबड़ा को पता चला कि ये जब 1200 मेगावाट हमें बेचते हैं तो ये तो कम रेट, और फिर इनको बिजली हम जो रिटर्न में देते हैं तो फ़ायदा तो फिर इनका हो रहा है। तो वाबड़ा ने क्या किया कि अभी एक पॉलिसी के तहत गुज़िश्ता साल 2 साल से ये करते हैं कि जब सोलर प्रोडक्शन शुरू होती है, जब सूरज निकलती है और सोलर की प्रोडक्शन शुरू हो जाती है, तो उस वक्त ये सिस्टम को ऑफ कर देते हैं कि जी हम जो है ना फॉल्ट को रिमूव करो। और ये एक दिन नहीं मुसलसल होता जा रहा है, और फिर जब सूरज गुरूब हो जाता है तो बिजली ठीक हो जाती है। तो इसका ये है कि अपनी महंगी बिजली बेचने के लिए और सोलर की बिजली ना खरीदने के लिए वाबड़ा वालों ने ये किया, और ये सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के साथ। इस वक्त एवरेज जो है खैबर पख्तूनख्वा में जो लोड शेडिंग है वो हर घंटे के बाद 2 घंटे की लोड शेडिंग होती है। तो अभी अगर ये हालत हो तो आप कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पे कारखाने लगेंगे। तो मैं ये बात लाना चाह रहा था मुजम्मिल साहब के कानों में कि सर ये मसाइल है जिस पे आप कराची और लाहौर को छोड़ दें, उस पर तो अल्लाह भी मेहरबान है और मरकज़ी हुकूमत भी मेहरबान है। इसी तरह दूसरी अहम चीज़ जो इंडस्ट्रीज़ के लिए वो गैस है। अब देखिए यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा जो टोटल गैस प्रोडक्शन है इस वक्त वो 550 यानी 550 MMCFD जो है, ये एक फार्मूला है उसका, जो मिलीमीटर क्यूबिक फीट किस तरह है उसका, वो पैदा करती है। अभी 550 MMCFD पैदा करती है। खैबर पख्तूनख्वा की टोटल कंजम्पशन कमर्शियल, डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल मिला के वो 200 MMCFD बनती है, और इसमें इंडस्ट्रीज के लिए 35 MMCFD, डोमेस्टिक और कमर्शियल के लिए 125 MMCFD ये वहाँ पे अभी। और इसके साथ क्या क्या कि खैबर पख्तूनख्वा की गैस की रेट अगर 3 रुपये बनती है तो हुकूमत उसको वही गैस जो है वो RLNG के रेट पे बेचते हैं, यानी आप समझ लें कि 8 या 9 रुपये पे वो आपको वो बेचते हैं। ये इसलिए कि ऐसा ना हो कि कराची वाले नाराज़ हो जाए या पंजाब वाले नाराज़ हो जाए, क्योंकि ये दोनों बड़े लाडले हैं और मरकज़ तो या पंजाब की है और या सिंध की है। इसी तरह अगर रेलवे को देखें, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बहुत अहम होती है और ट्रक के ज़रिए या इनके ज़रिए जो ट्रांसपोर्टेशन करनी होती है वो बहुत मुश्किल होता है। तो पंजाब और सिंध मरकज़ ने क्या किया कि ये जो हैवी जिसको कहते हैं कैरेज, उनके जो डब्बे होते हैं जिनमें वो जो रेल के लिए इस्तेमाल होते हैं ट्रेन, जिसको कार्गो वैगन कहते हैं, वो सिर्फ कराची से लेकर लाला मूसा तक आती है, यानी पंजाब तक। जहाँ तक ये खैबर पख्तूनख्वा इंटर होने की कोशिश होती है तो वहाँ से उसको स्टॉप किया। मतलब है आप खैबर पख्तूनख्वा से कार्गो ट्रेन के ज़रिए गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन कर ही नहीं सकते, और न मरकज़ ये करना चाह रही है। अभी ये हो गया मरकज़ से। अभी सूबाई हुकूमत ने कौन से इक़दाम किए हैं जिससे ऐसा ना हो कि कोई यहाँ पे इंडस्ट्री लगाए। देखिए, जहाँ दुनिया में जहाँ भी आप मॉडल देखें, हुकूमतें जो इंडस्ट्रियल जोन बनाती है उसमें वो इंडस्ट्रियलिस्ट को या सनतकारों को ऐसे रेट्स पे दे देती हैं ताकि वो वहाँ पे इंडस्ट्री लगाए। वो लीज पे देते हैं, लॉन्ग टर्म रीपेमेंट प्रोसेस देते हैं। खैबर पख्तूनख्वा ने बड़े इसलिए कि कोई इंडस्ट्री ना लगाए, और बंदा भी ऐसा लाया है तो ऐसा ना हो कि यहाँ पे कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन करे। पर प्लाट की कीमत, एकड़ की कीमत जो है, मतलब ये है कि इंडस्ट्रियल जोन में अगर आप पेशावर, चारसद्दा या मर्दान, जहाँ पे बड़े अच्छे ज़री ज़मीनें हैं, 1 एकड़ की कीमत होती है तकरीबन लगभग 1 करोड़ के करीब होती है। लेकिन जो बंजर ज़मीनें जो काबिल काश्त नहीं होती है, जहाँ पे इंडस्ट्रियल जोन बने, खाओ मर्दान, चारसद्दा, पेशावर, कोहाट, डेरा इस्माइल खान या हरीपुर में लगे हुए हैं, वहाँ पे पेशावर में इंडस्ट्रियल जोन में पर एकड़ जो प्लाट की कीमत है वो तकरीबन 10 करोड़ है। अभी अगर एक बंदा 2 एकड़ की प्लाट लेना चाह रहे तो 20 करोड़, तो वो पैसे पहले प्लाट पे लगाएं या वो इंडस्ट्रीज लगाने पे। इसी तरह दीगर जो सवाबी मर्दान, कोहाट या डेरा इस्माइल खान और जो हरीपुर या ऊपर जो इंडस्ट्रियल जोन लगाए गए हैं, बनाए गए हैं, वहाँ पे 4 करोड़ पर एकड़। मतलब है कि जो बेहतरीन ज़री ज़मीन है वो 1 करोड़ पर एकड़, जो बंजर ज़मीन है वो सरकार ने ये इसलिए ताकि कोई यहाँ पे ना आए और इंडस्ट्रीज शुरू ना करे। क्योंकि अगर एक बंदे ने
4 करोड़ या मतलब 1 एकड़ पे तो इंडस्ट्री नहीं लग सकती है, कम से कम 2-3 एकड़ आपने लेना होगा। तो उसके लिए अगर आपने 5-10 करोड़ आपने पहले ज़मीन पे खर्च किए तो कैसे हो? ये सूबाई हुकूमत की मतलब ये यहाँ पे मरकज़, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि दोनों मरकज़ी हुकूमत और सूबाई हुकूमत दोनों की ये पॉलिसी है कि खैबर पख्तूनख्वा में वो ना लगे। तो इंडस्ट्रियल यूनिट्स में जो है 4 करोड़ के लगभग जो है पर एकड़ प्लाट। तो अगर आपने 2 एकड़ लेना है, 3 एकड़ लेना है, तो आप मल्टीप्लाई करें कि कितने पैसे, और ये आपने कैश देने पड़ेंगे। ये भी नहीं है कि आप लॉन्ग टर्म इंस्टॉलमेंट पे कैश देने पड़ेंगे, और मकसद सिर्फ वही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा की जो सूबाई हुकूमत है एक और फैसला किया ताकि इंडस्ट्री तो ना लगे, जो अवेलेबल इंडस्ट्री है उसको किस तरह बंद किया जाए। वो इसलिए इस तरह बंद किया जाए कि पूरे मुल्क में एक्सपोर्ट्स पे 2% टैक्स लेती है FBR। इसमें कुछ रिटर्न भी होती है, कुछ एडजस्टमेंट होती है, क्योंकि उसके बाद कोई दीगर टैक्स आपने नहीं देने होते, सिर्फ 2% आपने देने होंगे। मुज़म्मिल असलम साहब ने कोशिश की कि यार ये तो गलत बात है, या तो कराची लाहौर के साथ हम किस तरह पेशावर को इस तरह कर सकते हैं, यहाँ पे तो हमने कब्रिस्तान बनाना है ताकि यहाँ पे कोई तिजारत ना करे। तो उसने ये किया कि 2% और एक्सपोर्ट सेस लगा लिया। अभी अगर आपने खैबर पख्तूनख्वा से एक्सपोर्ट करनी है तो आप 2% एक्स्ट्रा देंगे, यानी खैबर पख्तूनख्वा का एक्सपोर्टर जो है वो हुकूमत को 4% टैक्स देगा। कराची लाहौर और दीगर इलाकों की बनिस्बत इसीलिए ताकि वहाँ पे वो 2% है और 2% में भी रिबेट मिलती है, यहाँ पे 4% आपने देना होता है ताकि यहाँ से कोई एक्सपोर्ट ना करे। यही वजह है कि अभी अफगानिस्तान, सेंट्रल एशियन स्टेट्स के लिए जितने भी एक्सपोर्ट्स वाया खैबर पख्तूनख्वा होती थी वो अब तकरीबन बंद हो चुकी है। इसी तरह एक और जो सूबाई हुकूमत जो इस वक्त कर रही है, जो मैंने मुख्तलिफ इंडस्ट्री उससे बात की, ओनर से और लोगों से जो जानने वाले हैं, वो कह रहे हैं कि ज़्यादातर टैक्स तो फेडरल होता है, स्पेशली एक्सपोर्ट इंपोर्ट व तिजारत के हवाले से। तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत अब क्या करती है कि मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो है आपका, उसको कभी गोदाम डिक्लेयर करता है, कभी उसको कमर्शियल एंटिटी डिक्लेयर करता है, तो उस पर हाई रेट से टैक्स लगा लेते हैं ताकि आप बस कहे कि यार अल्लाह हाफिज़, मैं जो है यहाँ से बेहतर है कि मैं तिजारत फैसलाबाद शिफ्ट करूँ या लाहौर शिफ्ट करूँ या कराची शिफ्ट करूँ। तो ये भी सूबाई हुकूमत जो है ये कर रहा है, सूबाई हुकूमत ताकि यहाँ से ट्रेड को भी डिस्करेज करे, यहाँ पे इंडस्ट्रियल यूनिट्स को भी डिस्करेज करे। यहाँ पे अगर और इसके जो है ओवर एंड अबव सिक्योरिटी के हालात, एक्सटॉर्शंस, वो और होते हैं। तो मतलब ये है, जो मेरे इस विला का मतलब ये है कि किस तरह खैबर पख्तूनख्वा को एक पॉलिसी के तहत जो है उसको कब्रिस्तान बनाने की कोशिश हो रही है। सनती कब्रिस्तान, इंसानी कब्रिस्तान और तिजारती कब्रिस्तान बनाने की जो कोशिश हो रही है, और सोने पे सुहागा कि सेनेट में जितने आपके लीडरान हैं और कौमी असम्बली में उसने कसम खाई है सॉरी, ख्वाह PTI के हैं या खा दीगर जमातों के हैं, कि कभी आपने नहीं सुना होगा कि खैबर पख्तूनख्वा के किसी नुमाइंदे ने सेनेट में या नेशनल असम्बली में इन पे आवाज़ उठाई हो। वो क्यों नहीं करते पता नहीं है, बस एक ही मसला है, पाकिस्तान को आज़ाद करना है। तो पाकिस्तान को आज़ाद करना है, किस लिए आज़ाद करना है? दीगर सूबों को देके, सिंध को देके, पंजाब को देके, वहाँ पे इंसेंटिव्स दिए जाते हैं ट्रेडर्स को, बिजनेसमैन को, इंडस्ट्रियलिस्ट को, ताकि वो आए यहाँ पे तिजारत करें। खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ 2 बिजनेसेस अच्छे चलते हैं और अच्छी बात है, और कोई और काम ना हो तो फिर वो करना पड़ता है। एक तबलीग के लिए हम बहुत ज़्यादा लोग भेजते हैं ताकि वो दुनिया तो वैसे भी ऐसी है, आखिरत तो ठीक हो जाए। और दूसरा ये है कि मशरूम ग्रोथ मदारिस हो रही है, अभी ख़वातीन के लिए हमारे पास काम थे तो उस भी हो रहे, और अच्छी बात है। अगर स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है, तो ये तो है ताकि मुस्तकबिल में कोई इस तरह प्रोजेक्ट आ जाते हैं तो उसको आसानी के साथ इम्प्लीमेंट किया जाए। तो मैं अपील करूँगा, स्पेशली मरकज़ से भी नहीं और पंजाब से भी नहीं और सिंध से भी नहीं, खैबर पख्तूनख्वा के जो सियासी लीडरान हैं उनसे, कि खुदारा इस सूबे पे भी तवज्जो दें।